Welcome back to the series of MCQ of Indian history with respect to the old question paper. So let us start. We have finished in the last class. We have finished the first 20 questions. Now we will start with the next 20 questions from 21 to 40. So you can join our program, that is preliminary test series, by visiting our sites. So let us come toward the question number 21. With reference to the implication of Battle of Plassey, consider the following statement. पहली बात बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई? बैटल ऑफ प्लेसी हुई 1757 में. It was fought between Sirajudaulah. Sirajudaulah, he was the Nawab of Bengal, and Lord Clive. So of course, British forces defeated the Bengal forces. Now consider the statement. The British got directly involved in the Indian politics for the first time. So the statement is very much correct. The statement is very much correct. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनी थी, सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी, तो फर्स्ट टाइम जो है फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मिलिट्री कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लेसी. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड लॉज इन इंडिया. Now this statement is incorrect because Battle of Plassey के बाद they were more concerned with the revenue, with the economic, you can say that with the economic gains rather than any kind of administrative setup. Okay, the second statement is incorrect. It helped the British to become the supreme European power in India. Of course, the Battle of Plassey was very, very historical. So the correct answer is first and third. With the Battle of Plassey, इन्होंने क्या किया? इस revenue को utilize किया. They defeated the French, they defeated the Dutch. They became the supreme power, and from Battle of Plassey onwards there was no looking back for the East India Company. East India Company जो है Battle of Plassey के बाद इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी से ये एक मिलिट्री कंपनी बन गई, एंड अल्टीमेटली इट बिकेम अ पॉलिटिकल कंपनी. नंबर 2, which of the following were the features of doctrine of subsidiary alliance? Now see, the doctrine of subsidiary alliance 1799 में इंट्रोड्यूस हुआ. किसने इंट्रोड्यूस किया? इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेल्सले. लॉर्ड वेल्सले ने इंट्रोड्यूस किया. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में क्या था कि जो इंडियन रूलर थे दे हैड टू साइन अ काइंड ऑफ अ ट्रीटी जिसमें उनको अपनी आर्मी जो है वो सरेंडर करनी पड़ती थी. ओके, मतलब कि कमांड जो है उस आर्मी की ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, बट जितना भी सैलरी है, जितने भी एक्सपेंसेस है वो इंडियन रूलर ही देगा. प्लस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में एक रेजिडेंट की अपॉइंटमेंट भी होगी. प्लस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में जो है जो नेटिव रूलर है वो कोई भी फॉरेन रिलेशन नहीं बना सकता, कोई भी फॉरेन रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता, किसी भी राज्य के खिलाफ वॉर नहीं डिक्लेयर कर सकता, किसी भी राज्य के साथ ट्रीटी नहीं साइन कर सकता. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन. एन इंडियन स्टेट वर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्स within its territory. The statement is very much true. The Indian ruler had to agree to a posting of a British resident. Again, the statement is very much true. The Indian ruler could not employ any European in his service without the prior consultation with the company. So all the statements are the correct. Okay, so doctrine of lapse जो है, sorry, doctrine subsidiary alliance और doctrine of lapse two important policies थी British गवर्नमेंट की, जिसमें उन्होंने क्या किया? विदाउट एनी फाइट, विदाउट any battle जो है they subjugated number of kingdoms, and the state of Hyderabad or Nizam of Hyderabad was the first state who signed the subsidiary alliance. Now consider the following statement about the Charter Act of 1813. 1813 का जो चार्टर एक्ट जो था that was very very important question. से पहले हम इसको डिस्कस करते हैं. चार्टर एक्ट में जो है 1 लाख रुपए सैंक्शन किया गया था फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन. क्रिश्चियन मिशनरीज को अलो किया गया था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली जो है वो क्या किया गया था? रिड्यूस की गई थी और खत्म करने की कोशिश की गई थी. सिर्फ उनको बोला गया था वो एक टी में ट्रेड कर सकते हैं और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं. ओके, नाउ कंसीडर इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी. ओके, द स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी held by the company. The second statement is also correct. The revenue of the India were now controlled by the British Parliament. No, it was not controlled by the British Parliament. British कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली जो है फर्दर रेवेन्यू के मैटर में 20 साल के लिए बढ़ा दी गई थी. दैट इज वन ऑफ द रीजन 1813 के चार्टर एक्ट के बाद दूसरा एक्ट जो है 20 साल के बाद 1833 में आया था. अगेन 20 साल के लिए बढ़ा दी गई थी, फिर 1853 में आया था.
So the first statement and second statement is correct. The third statement is incorrect. So the true answer, the exact answer is first and two. Now, which of the following statement are incorrect? Now, this is incorrect. Question को ध्यान से पढ़ना है. Incorrect regarding the judicial reforms. Regarding judicial reforms of Warren Hastings. Warren Hastings के judicial reform जो है, Warren Hastings का जो tenure है, that was 73 से लेके 85. He was the first Governor General of Bengal. Okay. Now consider the statement. Separation of judicial functions from executive ones. This was a judicial reform, but it was not started by Warren Hastings. Okay. It was by the Lord Cornwallis. ये Lord Cornwallis ने किया था. ठीक है. Judicial system based on the principle of the sovereignty of the law. Again, the statement is not correct. Again, this was done by Lord Cornwallis. ये भी Lord Cornwallis ने किया था. Setting up of criminal court and civil court. Again, this was done by Warren Hastings. क्रिमिनल कोर्ट को बोलते थे फौजदारी अदालत और सिविल कोर्ट को बोलते थे दीवानी अदालत. दिस रेवेन्यू रिफॉर्म और यू कैन से दैट दिस जुडिशियल रिफॉर्म्स वाज कैरिड आउट बाय द वैरन हेस्टिंग. ओके, सो दिस स्टेटमेंट जो है इट इज करेक्ट स्टेटमेंट. क्रेडिशन ऑफ द सिविल कोर्ट्स, अगेन दिस वाज डन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. ओके, सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है दे आर इनकरेक्ट. First, second, and fourth statement are incorrect. Then consider the following statement regarding the economic critique of British imperialism. British imperialism मतलब drain of wealth. R.C. Dutt and Dinshaw Vacha put forward the drain theory to explain the economic exploitation of India. Again, this statement is very, very correct. और exactly original जो है drain of wealth की theory जो है that has been given by Dadabhai Naoroji. And it was supported by a number of economists, included R.C. Dutt, including M.G. Ranade, including Dinshaw Vacha, including Gopal Krishnan Gokhale as well. Okay, early nationalists considered the policy of free trade as a major obstacle for the rapid industrialization. Policy of trade, again this statement is correct. Indian leadership demanded encouragement of modern industry through tariff protection and direct government aid. Okay, so this statement is also correct. Okay, so ये जो तीनों स्टेटमेंट जो है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की इकोनॉमिक क्रिटिक के बारे में, दैट इज करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3. ओके, देन द पीरियड ऑफ मर्केंटलिज्म. मर्केंटलिज्म का मतलब होता है दैट इज द पीरियड ऑफ फ्री ट्रेड. बेसिकली जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, कॉलोनियल हिस्ट्री जो है, कॉलोनियल इकोनॉमी जो है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. द फेज ऑफ मर्केंटलिज्म, देन इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, एंड थर्ड इज फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, और इसको फिस्कल कैपिटलिज्म भी बोलते हैं. ओके, तो ये जो पहला फेज है इसका जो टाइमिंग है 1757 से लेके 1813 तक, ये 1813 से लेके 1857 तक, एंड फ्रॉम 1857 टू 1947. और ये जो 3 स्टेजेस है, मर्केंटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एंड फिस्कल कैपिटलिज्म, द 3 स्टेजेस हैज बीन गिवन बाय आरपी दत्त. आरपी दत्त ने अपनी एक बुक में जो है इसको डिफाइन किया हुआ है. नाउ सी द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे आर द करेक्ट. देयर वाज एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. Of course, this statement is correct. No basic changes were introduced in the judicial system. Again, this statement is correct. कोई भी चेंज नहीं हुई मर्केंटलिज्म के फेस में. मर्केंटलिज्म का फेस जो है 1757 से लेके 1813 तक. ओके, नो चेंजेस वर इंट्रोड्यूस इन द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. नो, देयर वाज सर्टेन चेंजेस, क्योंकि 1799 में ही आपका जो सब्सिडरी अलायंस था उसमें आर्मी सरेंडर करनी थी. सो देयर वाज अ चेंजेस किए गए थे इस फेस में. नंबर 4, मेजर चेंजेस वर मेड इन एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल फील्ड. द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. व्हाई? बिकॉज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला इनिशिएटिव था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वो 1813 में था, लेकिन जो इंप्लीमेंट हुआ था 1835 में. बाकी जो फर्स्ट कमीशन था एजुकेशन पे दैट वाज 1854 में. Okay, the only 1 and 2 statement is correct with respect to the phase of mercantilism. Mercantilism का मतलब है that was the phase of free trade.
यहां पे क्या था, दैट वाज द चीप बाय एंड सेल डियर, सस्ता लो और महंगा बेचो। तो यहां पे बेसिकली क्या था, एक्सपोर्ट ज्यादा होता था, इंपोर्ट कम होता था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट? परमानेंट सेटलमेंट जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस, परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट भी बोलते हैं इसको। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अगेन इट वाज इंट्रोड्यूस इन द 19% ऑफ द ब्रिटिश एरिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसकी वजह से क्या हुआ, कमोडिफिकेशन ऑफ द लैंड हुआ। द स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्चुअली दे वर एक्सपेक्टिंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन ये हुआ नहीं क्योंकि जमींदार अपने पर्सनल इंटरेस्ट में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, ऑफ कोर्स दिस वाज देयर because who was the actual owner of the land? Basically Britishers were the actual owner of the land on the large scale पे देखा जाए। ऐसे पीजेंट हैं, जब पीजेंट अपनी जमीन का रेंट नहीं चुका पाए तो उनके पास अल्टीमेटली लैंड किसके पास दे दी गई, जमींदारों को दे दी गई। और जब जमींदार लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर पाए ऑन द बिहाफ ऑफ द पीजेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे कम अंडर द सनसेट रूल। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्चुअल हु बिकम द एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड, ओवरऑल कौन थे, ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर जो है, एक्चुअल ईस्ट इंडिया कंपनी तो प्राइवेट कंपनी थी, जिसके मालिक जो है कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो कहां थे, इंग्लैंड में थे। सो दिस कंसेप्ट वाज नोन एज एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। सो ये भी हुआ इसका। इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, नो, देयर वाज नो इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, then consider the following statement with respect to social religious reform movement in South India. The justice movement in Madras was started mainly to secure representation of non-Brahmins in legislature. Of course, this is true. This statement was this movement was stated by C.N. Mudalai, then T.N. Nair. ठीक है, तो इन दो लोगों ने स्टार्ट किया। There were so many people, other people were also attached. So the statement is good. The statement is correct. The self-respect movement was started by Shri Narayan Guru Swami. No, it was not started by Shri Narayan Guru Swami. It was started by E.V. Rama Swami Naikar. Okay, so this statement, this movement was not started by this. The Vaikom Satyagraha जो 1924 में हुआ, was led by K.P. Keshav for the opening of Hindu temples for the untouchables. So this statement is also correct. So the correct answer is first and third. Correct answer क्या है, first and third. Okay. Then Theosophical Society, Theosophical Society जो है 1875 में बनी, ठीक है, न्यूयॉर्क में बनाई गई बाय H.P. Blavatsky एंड कर्नल ऑलकोट। बाद में 1882 में इसको मद्रास में शिफ्ट किया गया, एक जगह थी जिसका नाम था अदेर। ओके, बाद में एनी बेसेंट इसके साथ जुड़ गई। ओके, नाउ इट वाज फाउंडेड इन अदेर, नो इट वाज नॉट फाउंडेड इन अदेर, इट वाज शिफ्टेड इन अदेर। Actually, it was founded in New York by H.P. Blavatsky and Colonel Olcott. It recognized the doctrine of transmigration of the soul. Of course, they had certain philosophical, philosophical belief system. Transmigration of soul में believe करते थे. It preached the universal brotherhood of man and as well as the religion of mankind. Of course, this statement is also correct. Theosophy का मतलब ही होता है study of religion. It was led by Westerner who glorified Indian religion and philosophical tradition. Of course, this was also correct. So 2, 3, 4 is the correct answer. और लेटेस्ट स्टेजेस में जो सबसे बड़ा एक थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो सबसे बड़ा लीडर इंडिया में आया, दैट वाज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। द रिवोल्ट ऑफ 1857 के क्या कारण थे? बहुत सारे कारण थे। द फॉरवर्ड पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी वाज नॉट द रीजन, क्योंकि फॉरवर्ड पॉलिसी जो है 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड ने स्टार्ट की थी टू कैप्चर द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और टू एस्टैब्लिश द नेचुरल फ्रंटियर। ओके, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज aggravated people's discontentment towards the British Raj. Of course, this was the reason, क्योंकि 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज को अलो किया गया था
और देयर वाज डिसकंटेंटमेंट। लोग ये समझते थे कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो हिंदू धर्म पे अटैक कर रहे हैं और उनका एक ही पर्पस है, टू कन्वर्ट इंडियंस इनटू द क्रिश्चियनिटी। सो देयर वाज अ रीजन। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन द ब्रिटिश एनेक्स स्टेट, ऑफ कोर्स दिस वाज आल्सो द रीजन। परमानेंट जमींदारी सिस्टम, इकोनॉमिक क्राइसिस, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बड़े सारे रीजन है जो इकोनॉमिक कॉजेस बने। The spread of rumor that the new cartridges were greased with the fat of cows and pigs. So it was an immediate cause, ये भी कारण था। So 2, 3 and 4 are the reason, ठीक है। It became an immediate cause, ये immediate cause था। It was the immediate cause. Then 5831, which of the following are the correct provision of 1858 का जो एक्ट है उसका प्रोविजन क्या है? India was to be governed by and in the name of the crown through the secretary of the state. The statement is very much correct. Secretary of state बनाया गया। It changed the designation of Governor General of India to that of Viceroy of India. Of course, the statement is correct. Lord Canning जो है, he became the first Viceroy. It made the beginning of representative institution by associating Indians with the law-making process. No, this was not correct because it was done by the Act of 1861. यहां पे इन्होंने बोला गया कि इंडियंस को हम एसोसिएट करेंगे। इट वाज नॉट डन थ्रू द 1858, 1858 के थ्रू नहीं हुआ था ये। ओके, देन नंबर 4, इट एस्टैब्लिश अ 30 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सो देयर वाज अ काउंसिल ऑफ सम मेंबर्स बट इट वाज नॉट 30, इट वाज 15 मेंबर्स। 15 मेंबर्स की काउंसिल थी, 8 नॉमिनेटेड होंगे, 7 इलेक्टेड होंगे। So this statement is also incorrect. So only true statement जो है that is first and second. Consider the following statement with respect to Wood Dispatch Act. Wood Dispatch Act जो है 1854 में आया। Okay, ये एजुकेशन के लिए पहला एक्ट था। Okay, it was considered to be the Magna Carta of English education system in India. Of course, the statement is correct. It asked the government to assume the responsibility of education of the masses. Again, it was correct. Number 2 statement is correct. It recommended a system of grants in aid to encourage the private enterprise. So this statement is also correct. Okay, इस इंस्टीट्यूशन के इसके वो डिस्पैच एक्ट के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही 3 यूनिवर्सिटीज बनाई गई, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। ओके, ये कब बनाई गई? 1857 में। वो डिस्पैच एक्ट 1854। ओके, देन अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पूना सार्वजनिक सभा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूना सार्वजनिक सभा जो है 1867 में बनी बाय एम जी रानाडे ने बनाई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये बनाएगी 1885 में। ये बनाई बदरुद्दीन तैयाब जी, के.टी. तेलांग, इन लोगों ने बनाई। बदरुद्दीन तैयाब जी, के.टी. तेलांग एंड सो मेनी अदर पीपल्स वर आल्सो देयर। इंडियन लीग जो है ये थोड़ी सी बाद में बनी, ये थोड़ी पहले बनी 1875 में। इट वाज बाय शिशिर कुमार घोष। सो क्रोनोलॉजी क्या हो गई? दैट इज फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकंड। 1 3 2। सो 1 3 2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Consider the following statement with reference to the features of early nationalist moderate factions. Moderates ने कांग्रेस को डोमिनेट किया from 1885 से लेके 1905. So moderates, they were the early nationalists. Moderates, they believed in the continuation of the British rule. Moderates profess loyalty towards the British Empire. Moderates believe in 3P system: prayer, protest and petition. Moderate does not believe in the capacity of the masses. Okay, ये masses की capacity में believe नहीं करते थे, intellectual work में believe करते थे। Okay, now settle. They made the protection of the civil rights as an integral part of the freedom struggle. Of course, they demanded freedom, civil rights. They widened the democratic base of the freedom struggle by attracting the masses on the large scale. No, ये masses में believe ही नहीं करते थे। They demanded democratic rights, but masses को इन्होंने involve नहीं किया। तो second statement is not correct. They expose the exploitative character of the colonial rule. तो मॉडरेट की अगर कोई कंट्रीब्यूशन रही हुई है वो इनका इकोनॉमिक नेशनलिज्म रहा हुआ है, इकोनॉमिक क्रिटिक रहा हुआ है, जिसमें उन्होंने ड्रेना बेल थ्योरी को बड़े प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया। सो ओनली ट्रू स्टेटमेंट जो है दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। देन एक्सट्रीमिस्ट ने डोमिनेट किया 1905 से लेके 1915 तक।
extremist. The extremists gave call for the passive resistance. Of course, it is true. They called for the boycott of the government schools and colleges. Of course, ये स्वदेशी और boycott movement में they were very much, very actively participated. They asked for boycott of the courts and legislative council as well. Of course, their program included non-payment of taxes to the government. No, ये प्रोग्राम उनका नहीं था. ये बाद में जब गांधीयन नेशनलिज्म आया, जब गांधीयन मूवमेंट्स आई, तब बाद में कॉल दी गई थी लेटर स्टेजेस पे. सो द ट्रू स्टेटमेंट जो है 1, 2, 3. It is the correct answer. Okay, then 1936 डेक्कन राइट्स पहले भी हम कर चुके हैं. It was against the heavy taxation. रेतवारी सिस्टम में मैंने बोला था मनी लेंडर्स की प्रॉब्लम थी, एंड ऑफ कोर्स इट वाज द प्रॉब्लम वाज सॉर्ट आउट. इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई 1879 में. सो थी, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, 1, 2, 3 पीजेंट मूवमेंट में आता है. बेसिकली 20th सेंचुरी की 3 पीजेंट मूवमेंट है: इंडिगो रिवोल्ट, डेक्कन राइट्स एंड पबना रिवोल्ट. ये हम मॉडर्न की क्लासेस में कवर किया है. Which of the following was the objective of All India किसान सभा? All India किसान सभा 1936 में बनी. ठीक है, बाद में जाके बनी. Abolition of जमींदारी, it was true. Security the tenure for the tenants, again it was true. Securing living wages of agricultural laborers, again true. Complete abolition of land revenue, no, this was not their demand. It was not their demand. So again 1, 2, 3. 1, 2, 3 is the correct answer. Consider the following statement with reference to the contribution of Dr. Baba Saheb Ambedkar. He established बहिष्कृत हितकर्णी सभा, और बहिष्कृत हितकर्णी सभा भी बोलते हैं, 1924 में, to highlight the grievances of the depressed classes before the government. Again, तो ये इन्होंने किया. It was true. He organized All India Depressed Classes Association to condemn the hierarchical and insular caste system as a whole. Again, it was also true. He led the Mahad Satyagraha in 1927 to challenge the regressive customs of the caste Hindus. Again, this is true. So, सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू बाबा साहेब अम्बेडकर. बाबा साहेब अम्बेडकर की और भी बड़ी सारी कंट्रीब्यूशन है. उन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट सिस्टम लिखा, उन्होंने बड़ी सारी बुक्स लिखी, उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह किए. देन ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस. ही पार्टिसिपेटेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. ओके, बड़ी सारी कंट्रीब्यूशन है बाबा साहेब अम्बेडकर की. देन कोमागाता मारू इंसिडेंट. कोमागाता जो है, इट वाज द नेम ऑफ द शिप का नाम था, जो लगभग 370 पैसेंजर जिन्होंने जो है सिंगापुर से, ठीक है, कहां जा रहे थे? वैनकोवर में जाने नहीं दिया गया, और बाद में कहां पे आए? कलकत्ता में आए. बजबज जो आपका पोर्ट है वहां पे आए, एंड इट लेड टू द सीरियस क्लैशेस विद द गवर्नमेंट, विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसकी वजह से क्या हुआ? बड़े सारे लोग मारे गए. इट हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट भी थी, दैट वाज द गदराइट्स मूवमेंट और गदर मूवमेंट. सो कोमागाता मारू इंसिडेंट एंड गदर मूवमेंट आर क्लोजली एसोसिएटेड. ओके, so with the events activities of the गदराइट्स मूवमेंट, गदर मूवमेंट 1914-15 में स्टार्ट हुई थी, फॉरेन में स्टार्ट हुई थी. वैनकूवर वाले साइड, कनाडा, वेस्ट क्या बोलते हैं उसको, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका. पैसिंग ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इस अगेन दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. इनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए किया गया. सेटिंग अप ऑफ यूनाइटेड इंडिया हाउस एट सिएटल, इसका कोई लेना देना नहीं था क्योंकि ये 1910 में हुआ, और कोमागाता मारू इंसिडेंट 1915 में हुआ था. सो ओनली फर्स्ट एंड 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट. Then there was some statement with respect to a personality. He was a main architect of the Indian National Conference. Indian National Conference जो है ये 1875-76 में बनी. Later as a moderate leader, he provided leadership during the anti-partition movement in Bengal. Partition Bengal में movement में भी. In 1883, he became the first Indian journalist to be imprisoned. He also founded the Indian National Liberal Federation. He was elected as a Congress president twice. Only the second Indian to qualify ICS. First was who was the first Indian to qualify the Indian Civil Services? आप मैसेज में लिखना जरा मुझे. सत्येंद्र नाथ टैगोर was the first Indian to qualify. Okay. Then he was also associated with the newspaper Bengali. तो ये स्टेटमेंट किसके बारे में है? दिस स्टेटमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू सुरेंद्रनाथ बनर्जी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है, he was again qualified India, the second Indian to qualified ICS examination.
So this was again, you can say that the second lecture of MCQ. तो ये हमारा 100 क्वेश्चंस का जो है सीरीज है. दिस इज अ सेकंड वन. Now we will come with the third of this series, that is from 41 to question number 60. Thank you so much.